Assalamualaikum. My name is Mohammad Hamza and today I will come here to explain the rules of electromagnetism. ठीक है? So we have first rule of electromagnetism to find the direction of magnetic field around the current carrying conductor. For example, when a current is flow through any conductor, a magnetic field is generated around that conductor. So right hand rule is used to find the direction of magnetic field around this conductor. Let's suppose we have a conductor and current I is flowing through that conductor. So in how we can find the direction of magnetic field? So it's a very simple. Point your thumb of your right hand in the direction of current, then curling finger. This like this, and curling your curling finger will show the direction of magnetic field produced around that current carrying conductor. Let's see here. If I point my thumb in the direction of current, then curling finger will show the direction of magnetic field, that is anti-clockwise, like that. For the and if it is a, I am taking here कन्वेंशनल करंट, मगर अगर ये आपके पास हो इलेक्ट्रॉनिक करंट तो उसके केस में क्या होगा? तो इसके केस में आपने राइट हैंड रूल के बजाय लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है. फॉर एग्जांपल लेट्स सी हियर, मैं कहता हूं कि अब इसमें से इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो इस केस में आपने लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड करना है. तो डायरेक्शन ऑफ करंट के मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी? क्लॉकवाइज आएगी. देख रहे हैं आप लोग, ठीक है ना, ऐसे आ जाएगी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक करंट को सपोज कर लें. सो इस तरह आप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं अराउंड द करंट कैरिंग conductor. ठीक है. The next thing is that how we can find the direction of current carrying. How can we find the north pole of a solenoid in which current is flowing? For example, we have a solenoid. I have drawn it on the board. This is a solenoid, and I say that current is flowing from the solenoid in this direction. Means the current is flowing from here and then here. So current is flowing in this direction. Then if we curl our finger in the direction of current, then our thumb will indicate the north pole of the solid of that magnet. Means कि आपके पास solenoid में से current flow करेगा तो ऐसा ये एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा. ठीक है ना. सो ये आपका थंब है, अगर हम अपनी फिंगर्स को राइट हैंड की फिंगर्स को डायरेक्शन ऑफ करंट कर्स करें तो हमारा थंब नॉर्थ पोल को इंडिकेट करता है, वो लाइक दिस. तो नॉर्थ पोल क्या बन रहा है? इस साइड पे नॉर्थ पोल, उस साइड पे ऑटोमेटिकली साउथ पोल बन जाएगा. And next thing is that how we can calculate the force on a current carrying conductor placed in a magnetic field. I have a current carrying conductor. We have a current carrying conductor and is being placed in a magnetic field of a permanent magnet. ये करंट फ्लो कर रहा है और आपके पास मैग्नेटिक फील्ड क्या है? परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है. मींस कि मैं कहता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड आपके पास इनटू द पेज है. Draw symbol is showing here the magnetic field is into the board. And how we could find the direction of force on that conductor? It is very simple. We can use Fleming left hand rule to find the force on that conductor. Fleming left hand rule states that stretch your left hand in the way that your first forefinger will point in the direction of magnetic field. Your middle finger will point in the direction of current, then thumb will show the direction of force on the conductor. Let's see here. Magnetic field is into the board and current is from right to left, then force will be in upward direction. Similarly, if I take electronic current instead of conventional current, then we have to use right hand rule to find the direction of force, which is downward. You can see that it is downward. ठीक है. ये के पास जो given here ये के पास है due to conventional current. और ये किसकी वजह से? due to electronic current. अच्छा, मुझे स्टूडेंट्स ने बोला था कि आप सारे हमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन हमें समझ नहीं आए. सो मैं यहाँ पे उन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा. ये मैंने थोड़ा सा बेसिक बताया है, बिकॉज़ बेसिक बताए बगैर मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है. ठीक है. इफ यू हैव स्ट्रांग बेसिक देन यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस इजीली. इट्स क्वाइट सिंपल क्वेश्चंस, सो आई विल सॉल्व देम वन बाय वन.
The first question was your Michael Leary. Michael Leary, electron. We have one electron that is projected into the magnetic field perpendicular to the direction of motion of electron. Means कि आपके पास magnetic field कैसे है? आपके पास into the page है magnetic field. ये magnetic field की डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की डायरेक्शन है. मींस के करंट. अच्छा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब करंट होता है आपके पास. आप लोगों को ये बात पता है कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो आपके पास करंट फ्लो करता है. ठीक है. So if I want to, and the question was that in which direction the electron will bend. कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा. फोर्स मींस के फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर. सबके पास मैंने तब बताया था कि जब आपने फोर्स फाइंड करनी हो किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पे तो आप किससे फाइंड करते हो? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड करते हो. ठीक है ना. लेकिन अब यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो हम क्या करेंगे? हम राइट हैंड रूल से डायरेक्शन फाइंड करेंगे फोर्स की. तो राइट हैंड रूल कहता है कि आपके पास फ्लेमिंग रूल कहता है कि पॉइंट योर डायरेक्ट फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड योर मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द पार्टिकल. ठीक है. So we have the direction of flow of current in this way and magnetic field is into the board. So force is downward. I am using right hand rule because मैंने यहाँ पे right hand rule की इसलिए यूज किया क्योंकि मेरे पास क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है. अगर कन्वेंशनल करंट होता तो मैं यहाँ पे क्या लेता? यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड रूल लेता क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो मैं इसलिए यहाँ पे राइट हैंड रूल यूज करके डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड करूंगा जो कि डाउनवर्ड है. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इलेक्ट्रॉन विल बी डिफ्लेक्टेड डाउनवर्ड. ये इलेक्ट्रॉन का पाथ होगा. ठीक है. इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव करेगा. ठीक हो गया. अच्छा, इसके बाद एक और क्वेश्चन था उसके अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मुझे बहुत पसंद आया वो क्वेश्चन. मैंने उसको सॉल्व करना चाहता हूं यहाँ पे. तो क्वेश्चन ये था कि अगर आपके पास एक कॉइल हो, अगर आपके पास एक करंट के पास एक कॉइल है और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के साथ वो अटैच है. गैल्वेनोमीटर के साथ वो अटैच है. ठीक है. अगर मैं इसके करीब एक मैग्नेट लेके आता हूँ, अगर मैं इसके करीब एक मैग्नेट लेके आता हूँ, मींस कि मेरे पास एक मैग्नेट है, ये उसका नॉर्थ पोल है, ये उसका साउथ पोल है और मैग्नेट का नॉर्थ पोल में इस कॉइल की तरफ लेके जा रहा हूँ. तो हमें पता है कि जब आपके पास एक मैग्नेट को हम किसी भी कॉइल के करीब या दूर लेके जाते हैं तो उसके अंदर इंड्यूस करंट पैदा होता है ड्यू टू चेंज ऑफ फ्लक्स अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. E epsilon is equal to minus del phi by del T. And what is the meaning of that negative sign? It is indicating here Lenz's law. It states that the direction of induced EMF in a circuit is such that it will always oppose the cause that produce it. Means कि पास जो induced EMF इसके अंदर जनरेट होगी अपनी cause को oppose करेगी. Means कि इसकी cause क्या है? Change of flux है और flux change क्यों हो रहा है? Due to relative motion of magnet and coil. ठीक है ना. अब मेरे पास जब मैं इस नॉर्थ पोल को कॉइल के करीब लेके आ रहा हूँ तो अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ ये अपोज करेगा इसकी मोशन को, इस मैग्नेट की मोशन को. अगर मैग्नेट को मैं कॉइल की तरफ लेके जाऊं तो ये इसको अपने करीब नहीं आने देगा. ये मैग्नेट, ये कॉइल इस मैग्नेट को अपने करीब नहीं आने देगा. मतलब क्या होगा कि आपके पास यहाँ पे क्या है? फोर्स ऑफ रिपल्जन है जिसकी वजह से ये कॉइल मैग्नेट को अपने करीब नहीं आने दे रही. ठीक है. तो मतलब यहाँ पे क्या है? नॉर्थ पोल है मैग्नेट का ड्यू टू बिकॉज़ फोर्स ऑफ रिपल्जन है. तो मतलब क्या होगा कि यहाँ पे सिमिलर पोल्स है. ठीक है. यहाँ पे भी नॉर्थ है, यहाँ पे भी नॉर्थ है. तो अगर यहाँ नॉर्थ होगा तो ऑटोमेटिकली साउथ होगा. अब हमने फाइंड करनी है डायरेक्शन ऑफ करंट इन दैट कॉइल. सो व्हिच इज क्वाइट सिंपल. आप लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हो. ठीक है. आप ये करना है कि आपने अपने थंब को नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में पॉइंट करना है ऐसे. तो अभी कर लेंगे फिंगर बता देंगे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन दैट कॉइल व्हिच इज एंटी क्लॉकवाइज इस तरह. ठीक हो गया. लेकिन अगर मैं इसी मैग्नेट को इस कॉइल से दूर लेके जाऊंगा, उस तरफ लेके जाऊंगा, तो उस केस में आपके पास क्या होगा? देखो, अब अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ आपके पास फ्लक्स चेंज होना चाहिए. सॉरी अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, क्योंकि मैं इसको दूर लेके जाऊंगा तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम हो रही है. ठीक है. तो अब क्या करेगा ये इसको अपने से दूर नहीं जाने देगा क्योंकि इसके दूर जाने की वजह से इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रही है. तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की कॉज को अपोज करेगा. इंड्यूस्ड ईएमएफ क्यों पैदा होगी? ड्यू टू मोशन ऑफ मैग्नेट को हम अवे लेके जा रहे हैं. तो ये मैग्नेट को अवे नहीं लेके जाने देगा. मतलब क्या होगा? यहाँ पे मैग्नेट का साउथ पोल है, फोर्स ऑफ रिफ्रैक्शन है जिसकी वजह से मैग्नेट इससे दूर नहीं जा पा रहा है. तो यहाँ पे क्या है? साउथ पोल है, यहाँ पे क्या है? नॉर्थ पोल है. ठीक है.
अब इस केस में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, सिंपली आप राइट हैंड से फाइंड कर सकते हो, अपने थंब को नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में पॉइंट करो एंड योर कर्लिंग फिंगर विल गो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट दैट इज क्लॉकवाइज, दैट इज क्लॉकवाइज। तो आपके पास अब कैसे होगी, ये कुछ ऐसे होगी, ठीक है ना। फर्स्ट केस में डायनामोमीटर ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, सेकंड केस में वो उल्टा रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये सिंपल सा था, ठीक हो गया। उसके बाद एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो गया, लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आप लोगों की मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं कोई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये वेक्टर मैग्नेटिज्म के रूल पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको आएंगे, विदाउट प्रैक्टिस ये आपको कभी भी नहीं आ सकते, ठीक है। आप एटलीस्ट इस पे 10 से 12 प्रॉब्लम्स करें तो आपको ये इजीली क्लियर हो सकते हैं। अब मैं एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास 3 वायर्स है, मेरे पास क्या है, 3 वायर्स है और इन तीनों में से करंट फ्लो कर रहा है। एक ये इसमें से करंट फ्लो कर रहा है आउट ऑफ द बोर्ड, डॉट का सिंबल का शो कर रहा है कि करंट आउट ऑफ द बोर्ड फ्लो कर रहा है, ये वायर ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है। एक वायर है इनके बीच में क्रॉस में, इसमें से करंट इनटू द फोर्स इनटू द पेज फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अब कहता है व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन दैट टू वायर्स, इन दो वायर्स के दरमियान फोर्स का नेचर क्या होगा, रिफ्लेक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, ठीक है। सो अगर इसमें से करंट फ्लो करेगा तो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। सो मैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को फाइंड करूंगा बाय यूजिंग राइट हैंड रूल, ठीक है। तो मैं अपने थंब को बाएं की तरफ पॉइंट करता हूं क्योंकि मेरे पास करंट बाएं की तरफ फ्लो कर रहा है, तो कर्लिंग फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस। तो ये ऐसे होगी, सो इट विल बी इन दिस वे। तो ये क्या आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, इज इन दिस वे। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपके पास इस तरह जा रही है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपके पास इस तरह जा रही है। तो ये आपके पास क्या है, V1, ये आपके पास क्या है, यहाँ पे अपर डायरेक्शन में जा रही है। यहाँ पे भी अपर डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ पे भी अपर डायरेक्शन में जा रही है, ये कैसे हो सकता है, एक मिनट अगेन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी कैसे है, ऐसे ही डायरेक्शन ऑफ फ्लो का है। सो दोनों के दरमियान डायरेक्शन ऑफ फ्लो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सेम है। ये आपके पास है B1, जबकि पास है B2, ठीक है। अब मैं इसको डिफरेंट मार्कर से ड्रॉ करूंगा, बाकी सर्कल में डाल दूंगा सिर्फ और सिर्फ इसके दरमियान मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करूंगा, बाकी आसपास के मैग्नेटिक फील्ड को मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूं। ये आपके पास है B1 और ये आपके पास है B2 और दोनों सेम डायरेक्शन में। अब देखो तो B1 पे मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा B2 की मैग्नेटिक फील्ड, B1 पे कौन फोर्स लगाएगा, B2 की मैग्नेटिक फील्ड, और B2 पे कौन फोर्स लगाएगा, B1 की मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब मैं देखता हूं कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। सो आपने फाइंड करनी है B2 की फोर्स B1 पे, B2 की फोर्स लग रही है B1 पे, तो मतलब क्या हो गया, B2 की मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रही है B1 के ऊपर। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब मेरे पास डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, B2 की मैग्नेटिक फील्ड लेंगे हम लोग, ठीक है ना, वो कैसे है, अपवर्ड है, और B1 में से करंट कैसे फ्लो कर रहा है, आउट ऑफ द बोर्ड, तो फोर्स कैसे लगेगी, टुवर्ड राइट। ये कौन सी फोर्स है, ये B2 की फोर्स है ऑन B1, B2 की फोर्स है ऑन 1, ठीक है। अब अगर मैं दूसरी फोर्स को लूं, B1 की फोर्स B2 के ऊपर, तो मैं करंट B2 का लूंगा जिस पे फोर्स लग रही है, और मैग्नेटिक फील्ड B1 की लूंगा जो कि फोर्स लगा रही है, ठीक है ना। अब देखो तो फील्ड कैसे, अपवर्ड करंट कैसे है, इनटू द बोर्ड, अब